So today we are getting started with animations in an Angular. So motion is an important aspect in the design of modern web application. In Angular 1, there are CSS classes that you can use to animate elements into view and out of your view. Whereas in Angular 2 and 4, animations are implemented inside our component using a set of functions called as trigger, state, animate, transition, and style, and we have to import these functions from the package known as angular/animations. Okay, so we are getting started with our animation. For this demonstration I have created a new project, और let's say जो मेरे project का मैंने name दिया वो दिया my animation. So within this, first of all I have to import a package. जब भी हम animations के साथ work करेंगे we have to import a package and the name of that package is, so let me just make a use of my app directory. So here within this app.module.ts, I'm going to import a package, and the name of that package is import browser animations module. So this is the package which you have to include while working with animations, and this package is available within from and we can import this package from this angular/platform browser, और आपको फिर एक बार / देके देना पड़ेगा animations. ओके और यहाँ पर हमारे इंपोर्ट सेक्शन में भी मैं इसको एक बार इंपोर्ट करा देता हूँ, ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल. ओके नाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन माय HTML पेज. तो उस HTML पेज में लेट्स से आई एम गोइंग टू डिजाइन अ बटन एंड अ टेक्स्ट. So for this I am going to make a use of my app.component.html file. I am going to remove all this content. ये सब मैं एक बार हटा देता हूँ. And within this app.component.html, I'm going to make a use of this division tag. Within this division tag, I'm going to make a use of this button. Let's say इस button पे मैं एक text specify करता हूँ, click me. And in this app.component.html, I'm going to make a use of a paragraph tag as well. और यहाँ पर एक मैं text specify कर देता हूँ, look me. That's it. तो लेट्स से होगा क्या कि यहाँ पर एक बटन बना हुआ आ जाएगा क्लिक मी और एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा लुक मी. On the clicking of this button, I am going to increase and decrease the size of this text look me using animation. So I am going to save all this application. So let's say अब जो हम एनिमेशन परफॉर्म करेंगे वो ये करेंगे, as soon as I'm going to click on this button, my text will get increase or decrease. So first of all, I'm going to align all this within center. एक बार मैं इसको center में align कर देता हूँ. For this, I'm going to make a use of my app.component.ts file, and within this TS file, I'm going to make a use of a styles. तो यहाँ पर let me just make a use of a styles. तो app.component.html में जो मैंने यूज किया है वो मैंने यूज किया हमारा डिवीजन टैग. ओके लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस साइन. ओके एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई, लेट्स से मैं div को कुछ यहाँ पर स्टाइल्स दे देता हूँ. लेट्स से मैं देता हूँ इसका एक तो टेक्स्ट अलाइनमेंट देता हूँ. सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस मार्जिन. इसका देता हूँ 0 एंड ऑटो. इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसकी लेट से विड्थ मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 100 पिक्सल. So this is the style which I have given to my div tag. So let me just save all this application and test कि ये स्टाइल अप्लाई हुआ है कि नहीं. So now you can see that our style has been implemented और ये जो हमने लिखा था बटन और टेक्स्ट सेंटर में आ गया. Now here I am going to perform an animation. Start करते हैं हम animation से. So let's say in order to implement an animation we have to make a use of our this app.module.ts. तो यहाँ पर सबसे पहले बस आपको यही क्रॉस चेक करना होता है कि आपके पास ये ब्राउजर एनिमेशंस मॉड्यूल होना चाहिए.
Now here I am going to make a use of this app.component.ts file. First of all, I am going to import some functions which I am going to make a use of while performing an animation. उन functions के name क्या क्या है? Let's say the first function which we are going to make a use of is trigger. तो ट्रिगर क्या करेगा, जो भी हम एनिमेशन स्पेसिफाई करेंगे ऑन द क्लिकिंग ऑफ दिस बटन दिस ट्रिगर विल गेट एक्टिवेटेड और वो एनिमेशन परफॉर्म कर देगा. द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्टेट. ये स्टेट डिटरमाइन करेगा कि अभी आपकी करंट एनिमेशन की स्टेट क्या है. ठीक है, तो लेट मी जस्ट अभी मैं सिर्फ इन दो पैकेज को इंपोर्ट कराता हूँ. फ्रॉम @angular animations. अब लेट्स से अगर आपको एनिमेशन स्पेसिफाई करनी होती है विद इन योर app.component.html फाइल में, तो यहीं पर @component में मैं स्पेसिफाई करूंगा एक टैग. एक हमारे पास फाइल होती है एंड द नेम ऑफ दैट क्लास इज एनिमेशंस. ओके, दिस इज द क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एनिमेशंस. एनिमेशंस में जो भी आपकी स्टाइलिंग वगैरह रहती है वो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है विद इन एन एरे. सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एरे. एरे यहाँ पर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर एक ट्रिगर की भी डेफिनेशन देनी पड़ती है, स्टेट की भी डेफिनेशन देनी पड़ती है कि अभी मेरी स्टेज पे ये एनिमेशन अकर और दूसरी स्टेज पे ये वाली एनिमेशन अकर होगी. सो वो सब हम डिस्क्राइब करेंगे अपनी स्टेट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ट्रिगर. ओके, यहाँ पर ट्रिगर के बाद मैं इसको दूंगा एक नेम. द नेम ऑफ माई ट्रिगर, लेट्स से मैंने अपने ट्रिगर को नाम दे दिया माई एनिमेशन. दिस इज द नेम ऑफ माई trigger, and within this trigger we have to make a use of an array. इस array के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं state of our animation कि हमारे एनिमेशन की अभी state क्या रहेगी. So let me just make a use of this state. और यहाँ पर लेट से मैं अपनी state को एक नाम दे रहा हूँ. इस तरह मैं अपनी state को नाम दे रहा हूँ लेट से smaller. This is the name of my state. तो लेट्स से जब मेरी स्टेट रहेगी स्मॉलर, तो इस स्मॉलर स्टेट पे जो मैं स्टाइल इंप्लीमेंट करूंगा वो इंप्लीमेंट मैं कर रहा हूँ यूजिंग दिस स्टाइल टैग. ठीक है, तो ये मेरे को एक बार ऊपर भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा स्टाइल. दिस इज द फंक्शन विच वी आर गोइंग टू मेक अ यूज कि जब मेरे एनिमेशन की स्टेट ये रहेगी तो आपको ये वाला स्टाइल परफॉर्म कराना है. तो सबसे पहले मैंने ऊपर इंपोर्ट करा लिया मेरे स्टाइल को और इधर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ अभी मेरे स्टाइल को. ठीक है, तो स्टाइल की डेफिनेशन जो हम देंगे वो देंगे इन कर्ली ब्रेसेस. ये एक सेकंड में डालूं. स्टाइल में जो अब मैं स्टाइल दे रहा हूँ लेट्स से ट्रांसफॉर्म. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज. CSS में आपने ट्रांसफॉर्म का यूज किया होगा. सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ट्रांसफॉर्म एंड आई एम गोइंग टू स्केल माय टेक्स्ट. जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है लुक में, इसको मैं स्केल कर दूंगा 1 पिक्सल पे. सर ये आपको एक बार सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा. अब इसके बाद लेट्स से ये मेरी स्मॉलर की स्टेट होगी. इसके बाद मैं एक और स्टेट बना रहा हूं एंड द नेम ऑफ दैट स्टेट इज लार्जर. दिस इज द नेम ऑफ माय स्टेट. और इस स्टेट पे जो मैं स्टाइल इंप्लीमेंट करूंगा वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा समवट लाइक दिस. तो यहाँ पर मैं अपने स्केल को बढ़ा देता हूँ. तो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म और इधर मैं अपने टेक्स्ट का साइज जो कर दूंगा वो स्केल कर दूंगा अप टू 3. ठीक है, आपका डन हो गया ट्रिगर. लेट्स से हियर आफ्टर दिस स्टेट वी हैव टू स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन. तो ट्रांजिशन एक इवेंट होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि अभी आपकी स्टेट क्या है
और बाद में आपकी एनिमेशन की स्टेट क्या हो जाएगी. सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ट्रांजिशन. And in order to make a use of this transition, we have to import within our package. तो यहाँ पर मैं एक बार import करा लेता हूँ अपने transition को. Import transition. इधर आपको import कराना है transition, so that I can make a use of this transition. सो लेट्स से अभी जो मेरी स्टेट होगी, लेट्स से बाय डिफॉल्ट वो मैं इसको स्पेसिफाई करूंगा एज अ स्मॉलर. ये स्टेट मेरी चेंज हो जाए लार्जर में. तो यहाँ पर मैंने अभी एक स्पेसिफाई करा है कि अभी जब मेरी स्टेट अगर स्मॉलर रहेगी, सो आई एम गोइंग टू मेक इट एज अ लार्जर. अभी नीचे मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन दूंगा सबसे पहले, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एनिमेट. एनिमेट में हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है अपने मिली सेकेंड्स का टाइम. सो लेट से मैंने यहाँ पर एक चलो मैंने 300 लेट से मिली सेकेंड्स ले लिए, 300 मिली सेकेंड्स, एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म एन ईज इन. सॉरी यहाँ पर ये नहीं आया मेरा ट्रांजिशन. ठीक है, इसको एक बार ऊपर इंपोर्ट भी करा लेता हूँ मैं एनिमेट को. तो एक बार मैं इसको सेव ऑल करके देख लेता हूँ कि कुछ एरर वगैरह तो नहीं है. तो ट्रांजिशन आपका क्या बताएगा कि जब मेरी ये जो स्टेट होगी स्मॉलर से जब लार्जर में हो रही होगी, तो आई हैव टू परफॉर्म दिस एनिमेशन 300 मिली सेकेंड्स पे इज इन वाली, मतलब स्लो इन और स्लो आउट वाली मैं एनिमेशन यहाँ पर परफॉर्म कर दूंगा. सो लेट्स से यहाँ पर जो अभी हमने ये एनिमेशन बनाई है, आई वांट टू परफॉर्म दिस एनिमेशन ऑन माय टेक्स्ट. तो जो टेक्स्ट मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है वो मैंने स्पेसिफाई किया विद इन दिस पैराग्राफ टैग. अब इस पैराग्राफ में इफ यू वांट टू इंपोर्ट एन एनिमेशन, कि लेट्स से आपको इस पैराग्राफ टैग को बताना हो कि दैट ही हैज टू मेक अ यूज ऑफ दिस एनिमेशन, then we have to make a use of a directive called as @. So within this square brackets I have to make a use of @, and here you have to specify the name of your animation. Let's say जो मेरी animation का name मैंने specify किया है वो क्या है, my animation. So here I am going to write my animation. अब इस my animation की एक है ना स्टेट रहेगी. लेट्स से तो मैं अभी एक है ना वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर अपने app.component.ts में, इसको हटा के लेट्स आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ वेरिएबल स्टेट. और अभी मैं स्टेट को बना देता हूँ स्मॉलर, जो लेट्स से मैंने यहाँ पर ऊपर ली थी ये. अभी इसको मैं इस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करता हूँ स्मॉलर. सिंगल कोट्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर इसकी जो मैं अभी स्टेट कर देता हूँ, ये मैं एक वेरिएबल पास कर देता हूँ स्टेट. तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी स्मॉलर, जो आपने वहाँ पर इनिशियलाइज करी है. स्टेट इज इक्वल टू स्मॉलर है अपनी टीएस वाली फाइल में दिस वन. नहीं, ऐसे नहीं कर सकते. यहाँ आपको कंपोनेंट में ही ये बतानी पड़ती है स्टेट, एंड दैट विल बी डायरेक्टली किधर इधर. हाँ, यहाँ पर भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, स्मॉलर वगैरह लिख सकते हो इस तरीके से. ये टेक्स्ट नहीं होगा, ये बड़ा वेरिएबल. हाँ, तो दिस इज द नेम ऑफ माय वेरिएबल स्टेट. अब इस बटन पे लेट से मैं एक फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा ऑन क्लिक का, और उस फंक्शन का जो मैं नाम देता हूँ, लेट से इस बटन पे आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ क्लिक इवेंट, एंड द इवेंट दैट आई वांट टू परफॉर्म इज ऑन एनिमेट. So this is the function which I am going to execute on this on animate. तो हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अभी टर्नरी ऑपरेटर का विद इन दिस ऑन एनिमेट फंक्शन.
So within this app.component.ts, here I'm going to declare this onAnimate function. So here I'm going to make a use of a ternary operator. मैं इस तरीके से लिखता हूँ, let's say this dot state is equal to, if this dot state equal to अगर ये जो मेरी स्टेट है आपकी इक्वल टू रहती है स्मॉलर से, तो लेट मी इसमें का यूज ऑफ, then I'm going to change my state to, let's say this dot state equal to, मैं इसको कर दूंगा larger, else I'm going to execute it as a, only larger assign तो पहले ही उसके बाद फिर जब लार्जर होगी तो भी मेरे को फिर एनिमेशन परफॉर्म करनी है। आप समझे कि लेट्स से जब बटन पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट लार्जर हो जाएगा, तो दोबारा बटन पे क्लिक करोगे तो आपके टेक्स्ट की क्या हो जाएगी, लार्जर। फिर अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ द स्मॉलर, तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो इधर मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, दिस डॉट स्टेट, ऐसे भी कर सकते हो और इस तरीके से, मैं दोनों तरीके से भी आपको करके दिखाता हूँ। और इधर लेट्स से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपना स्मॉलर। सो इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑल। नहीं, मैं ये कह रही हूँ असाइनमेंट इसमें ठीक है, तो यहाँ से एक बार ये हटा देता हूँ मैं। अब क्या कह रहा है, द एनिमेशन ट्रिगर माय एनिमेशन हैज फेल्ड ड्यू टू, ओके यहाँ पर एक सेकेंड, ये एरर है। हमको ट्रांजिशन है ना ये स्पेसिफाई करनी कि जब स्मॉलर से लार्जर हो तो ये हो, और फिर हमने ये स्पेसिफाई नहीं करनी कि जब लार्जर से स्मॉलर हो तो, इस तरीके से हमको दोनों स्पेसिफाई करनी पड़ती है। चल रहा है आपका? तो यहाँ पर मेरे को क्या एरर दिखा रहा है स्मॉलर, my animation का the animation trigger my animation has failed to build due to the following error. स्मॉलर लार्जर इज नॉट सपोर्टेड। Larger के बाद I think ओके space आ रहा ओके, है एक सेकेंड, स्मॉलर से मेरा लार्जर की स्पेलिंग ठीक है, स्मॉलर है लार्जर है। ठीक है, वहाँ पे एक स्पेस है। जो आप वो कह रहे हो कि लार्जर टू स्मॉलर में मतलब जैसा भी ये एकदम से हो रहा है वो अलग है बट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही था, मैंने इधर एक स्पेस दे रखा था, वो स्पेस मैंने एक बार हटाया। ठीक है, सो और यहाँ पर ये दिस डॉट स्टेट आपका एक ही बार आएगा, सही था, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू लार्जर। आपने किस तरीके से लिखा है ये स्टेटमेंट? ऐसे लिखे ना, ठीक है, तो यहाँ पर बस मैंने दिस डॉट स्टेट एक्स्ट्रा लगा रखा था, अब सही है। अगर वो लगाना था तो आगे से ये दिस डॉट हाँ ये हटाना था, ठीक है, तो ये अब सही है कि दिस डॉट स्टेट अगर आपकी लार्जर है तो स्मॉलर हो जाए, वरना फिर से लार्जर हो जाए। और ये वाली एनिमेशन आपकी परफॉर्म हो जाएगी जब आपकी ट्रांजिशन चेंज होगी स्मॉलर से लार्जर में। अगर आपको लेट से कर रहा हूँ कि लार्जर से स्मॉलर में, तो आप एक और यहाँ पर कॉमा देके इस तरीके से एक और ट्रांजिशन को कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। और अगर लेट से आप चाहते हो कि दोनों में एक ही स्टाइल रहे, कि जब लार्जर से स्मॉलर हो रही है, स्मॉलर से लार्जर हो रही है, सो देन वी कैन मेक अ यूज ऑफ दिस ऑपरेटर। हाँ इस तरीके से, तो ये इंडिकेट करेगा स्मॉलर से लार्जर और लार्जर से स्मॉलर। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑल एंड टेस्ट दिस एप्लीकेशन। तो एक बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन थी। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं आपके एनिमेशन का।